नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। आवाज आ वेलकम रही सर। मेरी? हाँ आवाज आ आ रही रही है? है सर, अच्छा, ओके आ ओके, रही है सर। थैंक यू भाई। एक्चुअली सर डॉक्टर एचपी व्यास साहब जो बीकानेर टेक्निकल यूनिवर्सिटी के फॉर्मर वाइस चांसलर हैं, उन्हीं का लेक्चर चल रहा था, लेकिन किसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वो डिस्कनेक्ट हो गए हैं। तो यू आर वेलकम सर। ओके, थैंक यू भाई। Friends, we have Professor Alan Hurst Sahib. He is former Vice Chancellor, Agriculture University, Jodhpur, and he started his career as a scientist forestry at Kajri, Jodhpur, and work in different capacities at Kajri, and developed technologies in the field of forestry and agroforestry for arid zone. He represented India in foreign country. He has more than 25 visits to his credit, and even he has represented India in United Nations. And the Nobel Prize, which was received by Dr. R.K. Pachauri in 2007, Professor Alan Hurst Sahib has also contributed to that Nobel Prize, and his contribution was recognized by Government of India in 2007 also. And he has also been awarded by Marward Ratna for his contribution in arid zone. And I am also one of the fortunate people who got opportunity to work under the guidance and supervision of Professor Alan Hurst Sahib. Sir, I am extremely happy to see you here, and you are most welcome, and over to you, sir. Okay, Sir, please. thank you, Sarmaji, for inviting me for this webinar. I am very happy, and I would like to thank Honorable Vice Chancellor, Dr. R.P. Singh, and you and your team. I am extremely happy that from last 2 days I am listening the lectures of the different NS Rathod and all the things. Really, you know that being my experience as a Kajri scientist, and then gradually I become a vice chancellor to the agriculture university. I found a lot of the some experience which I got it, and you know that the COVID. Fortunately, I was so lucky that this lockdown period, I have seen all the data of our agriculture data, and then I have done some analysis that what is the problem where we are. And in this conference, especially, the COVID is not a new one. Since civilization, this pandemics comes and sometimes disasters comes, and all the time we learn how to overcome the problems and new strategies develop. This is the one. I remember that, you know, the smallpox, the government has developed the vaccine for that one. We have a polio, we developed the vaccine for that. TB vaccine for that one. Similarly, 1943, in agriculture aspect I am coming, in 1943, the Bengal famine, millions of the people, they die there. There is no scarcity of the food, but it is only the problem of the transportation at that time. The system was not well developed. So immediately our planners, they think of that we should have a transportation system and all the things. Then again, we got the another drought here, in Rajasthan, we call it a Chapanwa call, 1988 and 1989. At that time, there is a 3 droughts here was there. No water, drinking water was not available, fodder scarcity is there, and the grain is scarcity. With the result, we call it a 3 call. 3 call means that 3 types of the droughts are there. Lot of millions of the people, lots of people, they die there at that time. So then again in 62 and then 65, then my experience with the 82 to 87, I worked with the UN
There in African countries, lot of people, millions of people, they die because of the scarcity of the food. So every time we learned something. So in India, I still remember that up to 66, 65, 66, we were importing 10 million tons of the food grain from the US under the PL40 project. So that has come to our mind, our planners, bureaucrats, and thanks to our Prime Minister, then Prime Minister Indira Gandhi. She has, and Swaminathan Saab, all they develop the plan. So every pandemic or disaster, they teach us that how to overcome the problem of this one. And since 65 onwards, we are, instead of the importing, we are the exporter. And today we are getting 290 plus million tons of the grain, which is we are feeding and we are exporting that one. This is the our achievement. So similarly, now the what is the this COVID has given a lesson to us, that we learned that this COVID disease can be stopped by lockdown only. If you lock down completely, this maintain the social distancing, then certainly this disease will not spread. And we are so lucky that India, out of 130 million people, only if the 12,000 people, if they die, I think there is no problem. Now it sometimes it is by accident or all the things, but this is the care we have taken, that lockdown is the most important. Now what happens to this lockdown to the agriculture? I will only come to the agriculture side because it has effect on the industries and other organization. But I especially come to the agriculture, that all of a sudden this lockdown, it has a three ways it affect our agriculture. One, our education part. Most of our people from since 22nd March to the May or even to the June, no classes. The completely there is a colleges and the universities are closed, and in that case we have, it gives a new clue to us that though we are teaching in the classroom by chalk and this blackboard and the chalk, but in last few years we have started working on especially for your this PowerPoint presentation through smart classes. And that is the start. At that time we have started from a couple of months, couple of years, but unfortunately it has not picked up because our they are not well versed with such type of the advanced technology. But now by close of this lockdown, we have to teach our student, because out of this, during this period, 50 credit hours they are for the teaching to the student. Out of 50, only 35 has gone waste because we are not able to teach them. So we thinker, we planner, we thought that why not we should have a e-learning through your videos classes, through your electronic media. We should teach to students. But what the problem has come again, though we got a success, because most of our students, they have a app, this mobile and laptop and everything. But in the remote areas, when they are in the remote areas, probably they are not getting the signal. So government has to think in that direction, that such type of the infrastructure should be developed. In our new program of the world, our national agriculture higher education, such type of the facilities are available. So each university should develop the Wi-Fi system and broadband system, so that our student, while sitting, now the time has gone. I remember that I was in a 90 in the US. At that time, they were teaching through the PowerPoint presentation to we people. But unfortunately, India, we have not accepted that one. But this COVID has taught us, and it accelerates such type of the activity very quickly. And I'm very happy that through the YouTubes and through, if you go to any channel, through media and this agriculture teaching and all the things are available. So this is the a
every bad things teaches us, it's a new one for the teaching. But another problem comes to us, we people, that in agriculture, we have more than 30% as a practical in the field. So if you keep a distance, classroom, not in the classroom, sitting at a house, if we teach them, what is the problem comes for the practical. And we have now the ICR launched the program, the professional degree in agriculture. Professional degree means just like a medical doctor, after first year, basic knowledge, and then take in second year right from the field itself to learn what is the problem, how they are doing the cultivation and all such type of the activity have to do it. But this is the main question come to we people for agriculturists, that how this practical can be teach while sitting in offline teaching, means sitting they remain in their house. So such type of the 3D models or some other technology with the help of the IITians, IIT people or IT people, we should develop such type of the 3D programs, the models, so that right from the system we can see that how the seed germinate, seed size, how it, when it germinate, how the roots and all the things they come. So such type of if we develop the technology, definitely we can save our people and we can also teach to the our student. So this is the one aspect I would like to tell you about the teaching. And another main problem comes for we people, especially for the extension people, because agriculture universities has a three main. One is the teaching, another is the research, and third is the extension. We are directly deal with the agriculture farmers. So if there is a, we want to keep a distance, then how we can teach them, how we can explain. So in that case, our these models which we develop, they are very useful. Theoretically, we can teach, but we have to develop such type of the models to our students, our farmers also. This is the one aspect. The second aspect I have seen that during the lockdown period, you know that we have lost 30 to 50% of our produce. There is a one report from the International Institute of Mechanical Engineering from the UK, and you wonder that 2 billion tons of the food are being, we are losing almost all 30 to 50% of the food which we produce. And you know that in the return, we are not calculating here 556 billion cubic meter of the water we have wasted for 30 to 50% the wastage of our food material. And I have seen that there are a number of the reports in the paper and the electronic media. The people during the lockdown period, they are not able to sell their produce, the vegetable in the market, and they are simply wasting and they are feeding to the animals. So this is the one question comes to us, that in future such type of the problems comes, then how we will overcome this problem. I remember that in 2018, even our government of India in Parliament, Minister of Agriculture, Minister has declared that we are losing every year 1 lakh crore rupees by wasting our food material. And with the result, they have launched a one program. This is a food green food production, the Operation Green, just to protect the we save our wastage of the food material. I always have this in mind all the time. In the morning, in the this hawkers for green vegetable, they give you 50 rupees a kilo or something like, but in the evening they are giving you throwaway price, 5 rupees a day or like this, 5 rupees a kilo, means it is a wastage of the. So I thought at a time, since from my as being in agriculture vice chancellor, I developed a one that all the green vegetables should be dried in the solar dryer systems, and then they process for grinding and they can use at any time. I remember that number of the times the onion, which is in the season, you know that 50 rupees a kilo, 70 rupees a kilo,
And even once the government, Vajpayee government, he lost because of the piyaz only, that the cost has gone very high. But in the season, at the rainy season now, really, you cannot store the piyaz for a long time, onion. So what happens that in a 2 rupees, 4 rupees a kilo, the people, they are getting even much return from that one. So we have started cutting it, chopping it, and then dry in the solar. So what we have, the government has already launched the Operation Green. For that purpose, I say that a solar tent should be given to the farmers in a cluster of the farmers, so that our vegetable and the fruit should be protected, protected from the wasting of that one. Another one, recently this lockdown period, you know that 15,000 crore rupees to 15,000 crore rupees of the money we have wasted, we have lost by simple this lockdown period. Some this apple from the Himachal Pradesh, they loaded in the truck, but because of the lockdown they piled up at one place, so they became a rot in a due period of time. So this is the main problem, that we should now think that we should at least save 30% of the food material which we are losing every year. At least post harvest technology, the program in our university should be strengthened. And I remember that CIFET has developed a small equipment. You know that in our house, for cleaning of the house, we use the vacuum cleaner. Why not such type of the small equipment should be developed for the farmers? Because I remember that at the lockdown period, the farmers, they cried that we don't have the manpower, because all our young people, they remain in the city, locked there. We are not able to harvest. And if you are not able to harvest your crop or your vegetable within 8 days or 10 days, they will spoil. The floriculturist, all the the temples and everything is closed. The floricultures are very in a debate. They have lost all the things and they have uprooted the flowering plants from their field. So such type of the seed, if we develop a small micro processing, I should say that not a small industries, but it should be a micro processing industries should be developed in the farm itself, so that a cluster of the village people, they just process it and then pass on to the big industries. And that can be done by our professors and our state government, that they tie up with the big industries and the micro industries people, so wastage can be avoided. The third part is come that while looking this the data, I feel proud, and we are all are proud that our scientists, our farmers, and the planners, they have done excellent work, and we are exporting. But unfortunately, we are number 2 in the grain production, in the rice production, in the wheat production. In banana, we are number 1. In papaya, we are number 1. Cane sugar, we are. So in number of the part, throughout the world, we are number 1 or 2. But unfortunately, I have compared the production of 50 countries, which is data book from our ICR has published recently in 2019. I really wonder that our standing in most of the crops are among the 30 countries. We are at 30. We are in 25 rank. We are in 40 rank. Unfortunately, that has given I was shocked that certainly we are getting number 1 in production, but in per hectare, per unit of the production, we are in a very low ranking. So our emphasis now that per hectare yield, how we can increase. We have already, we don't have much land to expand our production now, but we have to go for the vertical production. So for that purpose, you know that our farmers are very hardworking. Our teachers are very good. We develop the new technology. But unfortunately, our 80% of the farmers, they are illiterate. The technology has not gone to
the ground level, to the grassroots level. How that can be? Though our NARS system is very extensive in the world, that maximum research, this extension worker, our research, teachers and everything, we are the maximum. But unfortunately, even that technology has not gone to the farmers. So I feel that the ICR has already, for the BSc student, BSc agriculture student, earlier we were having a RAVE program, but now recently we have changed to the READY program. So our final year is for 1 year. This would remain with the farmers, find out what they have a problem, why they are not getting the so much production, and then they also connect to the industries like chemical industries, maybe pharma industries, pesticide industries, all seed industries, so that they can prepare. But I further add one more, because if after MSc, like in medical science, we are giving the 2 years a residency to our medical doctor, why not our MSc student, after getting the degree, they should given at least for 1 or 2 years as a residency to work in the field. We should allot them 10 to 20 a cluster of the farmers, and these our MSc agronomist, he should work there, apply our technology to the field. And I am sure that if 1 year, if we work very hard, if the production increase, then we can make MOU with the farmers that if you are getting the profit after application of new technology with my student, with our student, let give 10 to 20% a MOU should be prepared, make with the farmers. So farmers will be happy that he will get the advantage of 80%, 20% to our student. And like this, if our student get the money, definitely some other cluster will join him, and he will, this is the one aspect I am considering, that our students should be, though it is a part of our ICR, this division of education, ministry and the government. I remember that this our state agriculture minister of India, uh, Chaudhary ji, he has told me that, I met recently to him, he said that yes, our students should be in the field for 1 year. So such type of the, if we do such type of the things, then our farmer technology will go to the grassroots level, and I am sure that within a 2 years we can even at least reach to the world average, not to the toppers, highest the producer. Then another point I have in my mind, that custom hiring system we have applied, already government has announced. But I think that because we have a very small farmers, during our green revolution, we have given the concentration on the big farmers, where the water and the tractors and all the facilities. But now our 80% farmers, they have a less than 2 hectare area, even less than that one. So big tractors cannot work. Our two family members, only because of the family planning. Do you think that for 1 hectare harvest of the wheat, we required a 21 person to harvest, very expensive one. So if we just develop a small harvester, so that a one single farmer, he can harvest his crop 1 hectare area, 2 hectare area, easy to operate one, the cost should be minimum. And even if it is a 10,000 cost, 5,000 cost should be given by the government subsidy. So we should develop a small equipment for harvesting, for threshing, so that our the single farmer, because I foresee in the future that our this agriculture is in the dark, because two children, everybody likes to come to the city for higher education, then who will do the agriculture in the field? So mechanization is the most important. This is in my mind. So these three things I covered in my lecture. I hope I have taken more time because of your lunch time is there. So
thank you very much for giving this opportunity. And I just share my experience. The product processing is the most important one. Let the people who do the product processing, drying itself in the field. So we can, in Nagaur, there is one MDH masala. They have developed the industries because there the Nagori methi is developed, grown there. Onion are grown there, garlics are there, this chili are grown there. So they develop. So such type the small industries is we develop. So definitely we can save our production and the nutrients and the energy. This is my opinion. Thank you very much for giving Thank you, this sir. opportunity and giving my share. Thank you, sir. Thank you very much for accepting our invitation and giving this wonderful talk. He has emphasized on post-harvest handling, processing, and value addition of uh, food grain, fruits and vegetables, and even forest products. And he himself has developed a model for processing of cattle feed through Prosopis juliflora, and he has developed a very good technology, gum extraction technology, and it would not only check the spoilage, but it would enhance the income of the farmers, and it would definitely help in the employment opportunity for the rural youth. Sir, thank you very much for giving the wonderful talk. Thank you very much, sir. So thank you very much. Thank you. Bye. Sir. Now we have Dr. J.S. Khichad from Maharaja Ganga Singh University. Dr. Jaswant Singh ji, he is dealing examination. He is controller of examination. Dr. Arvind. हाँ जी सर. जसवंत जी सर, आवाज आ रही है मेरी? सर आप अपने आप का अनम्यूट करो, आपका वीडियो तो आ रहा है, ऑडियो नहीं आ रहा. जसवंत जी सर, प्लीज अनम्यूट योर ऑडियो. आपका ऑडियो म्यूट बता रहा है. कर दिया, अनम्यूट कर दिया. हाँ ठीक ठीक सर, आ गया, अब आ गई आवाज. थैंक यू डॉक्टर साहब, वेलकम. नहीं, अभी फिर चले गए. जसवंत जी सर. हेलो. हाँ जी सर, आ रही है. डॉक्टर साहब सुन पा रहे हैं? ये मेरे स्क्रीन पे नाउ यू आर विजिबल सर, यू आर विजिबल. अभी हम आपको देख पा रहे हैं. जी सर. नहीं, मैं ये निवेदन कर रहा था, मेरे स्क्रीन सर, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आवाज आ रही है, आपका विजुअल भी आ रहा है. आपका मैं एक निवेदन कर रहा था, मेरे स्क्रीन पे बार बार ये वेटिंग रूम का आ रहा है किसी का, तो मैं इस पे एडमिट करता जाऊं या आपके सिस्टम में वही हो रहा है? नहीं सर, वो हम करेंगे सर, वो एडमिट का हमारा है. आपको को होस्ट बनाया इसलिए आपको भी दिखाई दे रहा है वो. जी जी ठीक है. होस्ट का काम मैं करूंगा सर, आपको कुछ नहीं करना, वो मैं करता रहूंगा. ओके ओके ठीक है. एक्चुअली प्लीज कंटिन्यू सर. डॉक्टर जसवंत सिंह जी खीचड़, आप कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन हैं महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी बीकानेर में, और जी सर, आप को एग्जामिनेशन एंड इवैल्यूएशन स्ट्रेटेजी अंडर चेंजिंग सिनेरियो ऑफ कोविड-19 इसके ऊपर आप बात करेंगे, क्योंकि आप एक बहुत बड़ा जो स्टूडेंट्स का ग्रुप है, आई थिंक मोर देन 4 लाख. हाँ, मोर देन 4 लाख सर, एग्जैक्टली. More than 4 lakh student he is dealing, so it is a very big number. And thank you sir very much for accepting our invitation, and now over to you, please. थैंक्स सर. मैं स्टार्ट करूं सर? Yes, please. तो आज का जो ये नेशनल वेबिनार ऑन स्ट्रेटजी फॉर स्ट्रेंथनिंग एग्रीकल्चरल एजुकेशन अंडर चेंजिंग सिनेरियो ऑफ कोविड-19 पे जो वेबिनार स्वामी केशवानंद राजस्थान एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने जो आयोजित किया है, बहुत सामयिक है, और इसकी
बहुत जरूरत है अब कि ये नॉलेज या ये इंफॉर्मेशन स्टूडेंट्स को, फार्मर्स को और दूसरे जो लाभार्थी हैं उनको मिले। थोड़ी सी बात मैं शुरू करूंगा सर, क्योंकि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का ये प्रोग्राम है। जी जी। तो मेरा ये मानना है कि हिंदुस्तान जैसे कृषि प्रधान देश में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज का जो रोल है, मैं समझता हूँ वो किसी भी तरह से बड़े अकादमिक विश्वविद्यालय, आईआईटी, आईआईएम इनसे कम नहीं है। और एजुकेशन, ये एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस जो एजुकेशन देते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, रिसर्च कर रहे हैं, उसके कारण से एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स में कितना इजाफा हुआ है वो हमारे सामने है। खास करके मैं कहना चाहूंगा कि खाद्यान्न के मामले में हम लोग न केवल अब आत्मनिर्भर हो गए बल्कि दूसरे कंट्रीज को हम एक्सपोर्ट भी करते हैं। खास करके राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय की जो स्थिति है सर, इससे हमारी सोसाइटी को और कंट्री को, स्टेट को कितना लाभ मिला है। एक ये ऐसे क्षेत्र में स्थित है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बीकानेर की, कि इस क्षेत्र में कुछ अरसे पहले, यानी ये यूनिवर्सिटी स्टेब्लिश होने से पहले, इस रेगिस्तानी क्षेत्र में केवल वनस्पति के नाम पे आकड़े, फोग, खेजड़ी ऐसी कुछ वनस्पति थी। इस यूनिवर्सिटी का जो कंट्रीब्यूशन है इस क्षेत्र में, वो मैं एक लाइन में सर निवेदन करना चाहूंगा कि जहां केवल ये वनस्पति होती थी, आज हम यहाँ खजूर पैदा कर रहे हैं, तो ये बड़ी बात है। इस यूनिवर्सिटी में जो रिसर्च हुए हैं, जो अध्ययन अध्यापन हुआ है, उसका डायरेक्ट बेनिफिट न केवल यहाँ इस क्षेत्र के लोगों को मिला बल्कि पूरी कम्युनिटी को, फार्मर्स को, पशुपालकों को, आम आदमी को, और इसका जो अपने राष्ट्र की जो जीडीपी है, इकोनॉमी है, उसमें भी बहुत बड़ा योगदान है। सर मैं अब मेरे टॉपिक पे आना चाहूंगा। मेरा टॉपिक है एग्जामिनेशन एंड इवेल्युएशन स्ट्रेटजी अंडर चेंजिंग सिनेरियो ऑफ कोविड-19। कोविड-19 के इस दौर में कोई भी शिक्षा, पर चूंकि ये वेबिनार एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी की है, तो कृषि शिक्षा की बात करें तो कृषि शिक्षा को सुगम और प्रत्येक विद्यार्थी और स्कॉलर की अप्रोच में लाने के लिए इसका स्वरूप क्या हो, ये एक्सपर्शन है आज का। पहले के वक्ताओं ने एजुकेशन पे काफी ज्ञानवर्धक बातें कही और मैं तो उतना नहीं कह सकता, क्योंकि पर्टिकुलरली मैं कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन हूं, तो एग्जामिनेशन के सिस्टम की मैं ज्यादा बात करूंगा। अब चूंकि इस अवस्था में या इस दौर में ऑनलाइन टीचिंग की बात हो रही है, ऑनलाइन रिसर्च की बात हो रही है, और आपके यूनिवर्सिटी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय ने तो इस पे बहुत काम शुरू कर भी दिया है। मैं, मेरे जो मित्र लोग हैं टीचिंग में, उनके माध्यम से और अन्य जो रिसोर्सेस हैं उनसे मुझे जानकारी मिली है कि आपके सुपरवाइजर्स और टीचर्स ने काफी काम ऑनलाइन शुरू कर दिया है, जो इस वक्त की मांग भी है। क्योंकि ये एक चैलेंज है शिक्षकों के सामने भी, विद्यार्थियों के सामने भी, और यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन के सामने भी। परीक्षा की जैसे बात करें हम, तो हमारा जो नंबर है, मैं महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी से बिलोंग करता हूं, तो हमारा नंबर स्टूडेंट्स का मोर देन 4 लाख है। एग्जाम 2020 में हम 4,10,000 बच्चों का एग्जाम कंडक्ट करा रहे हैं। एग्जाम हमारा सर स्टार्ट हो गया था पर बीच में स्थगित हो गया कोविड के कारण से। अब हमने दोबारा से प्रोग्राम बनाया है, पर चूंकि दिक्कतें बहुत हैं, कई तरह की बात आ रही हैं। आजकल भाई एग्जाम हो तो कैसे हो, या हो ही नहीं, बिना एग्जाम के प्रमोट करें, ऐसी कुछ चीजें सामने आ रही हैं। एजुकेशन के
एजुकेशन अपन ने चाहे अपन ऑनलाइन दें, चाहे क्लासरूम टीचिंग से दें, चाहे अन्य किसी माध्यम से दें, लेकिन मैं ये मानता हूं जो लोग ये कह रहे हैं कि भाई परीक्षा के बिना ही प्रमोट कर दो, कई जगह से ये बातें आ रही हैं, स्टूडेंट भी कर रहे हैं, टीचर्स भी कर रहे हैं, दूसरी संस्थाएं भी कर रही हैं। सर मेरा ये मानना है कि किसी भी मोड से, किसी भी माध्यम से हमने एजुकेशन ली है, ज्ञान प्राप्त किया है, ट्रेनिंग प्राप्त करी है, शोध के ऊपर काम किया है, तो उसका मूल्यांकन होना आवश्यक है। मूल्यांकन से क्या होता है कि स्टूडेंट हो, चाहे रिसर्चर हो, चाहे ट्रेनर हो, ट्रेनी हो, मूल्यांकन से उसको अपने स्टेटस का, लेवल ऑफ नॉलेज का पता लगता है और उसके आधार पे वो अपने नॉलेज को इम्प्रूव करता है। तो एग्जाम आवश्यक है, मैं ये समझता हूं कि एग्जाम आवश्यक है। एग्जाम के बाद जैसे रिजल्ट आता है स्टूडेंट्स का, तो उस रिजल्ट से वो अपने आप को असेस कर लेता है कि मेरा ये लेवल है, और उसके बाद वो और अच्छा काम करने की, चाहे रिसर्चर हो, चाहे ट्रेनी हो, चाहे स्टूडेंट हो, और अच्छा काम करने की उसको प्रेरणा मिलती है। अब चूंकि ये पीरियड कोविड का है, कोरोना संक्रमण, और अभी तो इन दिनों में, हाल के दिनों में तो ये और ज्यादा गति से बढ़ रहा है। इसमें मेरा ये मानना है कि परीक्षा तो अवश्य होनी चाहिए और सेफ्टी मेजर्स के साथ हो, क्योंकि सेफ्टी मेजर्स के बिना जो एग्जाम होगी उसका नुकसान सोसाइटी को ज्यादा होगा। तो मैं ये मानता हूं कि परीक्षा होनी चाहिए। अब परीक्षा कैसे हो, ये एक विचारणीय विषय है जिसपे अलग अलग फील्ड से बहुत तरह के सुझाव भी सामने आ रहे हैं। मैं व्यक्ति से ये मानता हूं कि परीक्षा अवश्य हो, लेकिन हेल्थ और लाइफ की कॉस्ट पे नहीं हो। इसलिए हमारी जो यूनिवर्सिटी की परीक्षा का मामला है वो तो थोड़ा अलग है, लेकिन एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज जो हैं उनके साथ एक प्लस पॉइंट है, मैं ये समझता हूं। उनके साथ एक प्लस पॉइंट ये है कि एक तो इनकी स्टूडेंट की नफरी जो है वो कम है, दूसरा आपके कॉलेजेज ज्यादातर बड़े शहरों में या एटलीस्ट डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हैं, मेरी जानकारी के अनुसार। हो सकता है अब चूंकि विस्तार बहुत तेजी से पिछले 5-10 साल में हुआ है और छोटी जगह भी आपके कॉलेज खुल गए होंगे, लेकिन मेरी जो जानकारी है उसके मुताबिक मतलब ठीक ठीक जगह पे हैं। इसलिए वहां पे एक ये विकल्प एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज की एग्जाम के लिए हो सकता है, जो सेफेस्ट भी है, कि ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट करी जाए। ठीक ठीक जगह पे कॉलेज होने पे, टाउन में या जिला हेडक्वार्टर पे होने पे कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम नहीं होती, और ऑनलाइन में कहीं स्टूडेंट को जाना नहीं, इसलिए ये जो सोशल डिस्टेंसिंग की और दूसरी जो सेफ्टी मेजर्स हैं वो फॉलो हो सकते हैं, प्रोटोकॉल फॉलो हो सकता है। तो एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज के लिए मेरा एक सोचना भी है, सजेशन भी है कि हम इसको ऑनलाइन एग्जाम कराई जा सकती है छात्र संख्या कम होने के कारण, और इसका ऑनलाइन ही इवेल्युएशन भी कराया जा सकता है। ऑनलाइन इवेल्युएशन से आगे की जो प्रोसेसिंग है रिजल्ट की और की, वो सब थोड़ा समय उसमें बचेगा। अभी आपको मैं थोड़ी जानकारी भी दे दूं कि हम लोगों में भी दूसरे जो एकेडमिक यूनिवर्सिटीज हैं अपने स्टेट की, सब में थ्योरी और प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, प्रैक्टिकल ऑनलाइन हम कराने लग गए, एग्जामिनर का अपॉइंटमेंट और सब ऑनलाइन हो गया, एग्जामिनर को भी हम बाय मैसेज इंफॉर्मेशन जाती है, और प्रैक्टिकल क्लास में लेने के बाद में एग्जामिनर जो मार्किंग करता है वो सब हमारे यहाँ पिछले 3 साल से ऑनलाइन है। तो इसमें एरर नहीं होता, अपने सामने सिस्टम को खोलेगा, हम पासवर्ड देते हैं, उससे पासवर्ड से खोलता है, एग्जाम लेने के बाद वो उसमें मार्किंग कर देते हैं।
तो एक तो उसमें एरर की संभावना कम है, दूसरी किसी तरह की इसमें गलती या कोई बदमाशी भी नहीं हो सकती, क्योंकि जिसको पासवर्ड मिला है वही एग्जामिनर अपना सिस्टम को खोलेगा। थ्योरी में भी हमने पिछले 2 साल से थ्योरी की कॉपी, जैसे हम कॉपी ऐसे जांच करते हैं जैसे हार्ड कॉपी होती है, लेकिन कॉपी की जांच करने के बाद में हम उनको पासवर्ड लॉगिन आईडी देते हैं, उससे वो मार्क्स ऑनलाइन ही चढ़ाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी तब्दीली कह लें या इम्प्रूवमेंट कह लें परीक्षा के सिस्टम में, ये महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी पिछले 3 साल से कर रही है। अभी पिछले साल से राजस्थान यूनिवर्सिटी ने भी किया, कुछ काम एमडीएस यूनिवर्सिटी ने भी किया, और धीरे धीरे सारे यूनिवर्सिटी इस लाइन पे आ रही हैं। तो आपके यूनिवर्सिटी का जो एग्जाम, चूंकि आपका स्टूडेंट नंबर कम है, इसलिए मेरी समझ में सफलतापूर्वक आपकी ऑनलाइन एग्जामिनेशन हो सकती है, और ऑनलाइन एग्जामिनेशन होने के बाद ऑनलाइन ही आपका इवेल्युएशन भी हो सकता है। बाकी थ्योरी के अलावा आपके प्रैक्टिकल एग्जाम्स का क्या सिस्टम है उसके बारे में मैं ज्यादा नहीं जानता, लेकिन आज की तारीख में कोविड-19 के सिनेरियो में सर मुझे ऐसे लगता है कि आपके या साथ साथ में कहूँ राजस्थान में तो जो भी एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज हैं उनमें नफरी कम है और सेटअप जैसा भी है, लेकिन ये सबसे अच्छा और सबसे सुरक्षित तरीका मुझे लगता है। अदरवाइज तो जैसे हम लोग भी अभी एग्जाम करा रहे हैं तो हम सोशल डिस्टेंसिंग के साथ और दूसरे जो सेफ्टी मेजर्स हैं, जो प्रोटोकॉल है कोविड-19 का, उसको फॉलो करते हुए करा रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ तो क्या 430 के आसपास कॉलेज हैं और 160 सेंटर्स हैं। सेंटर्स बहुत रिमोट एरिया में भी हैं, इसलिए हम ऑनलाइन नहीं करा पा रहे। हालांकि हमने एक्सरसाइज उस पे भी की, पॉसिबिलिटी एक्सप्लोर की, लेकिन उस पे हमें लगा कि हम अभी इस स्टेज पे नहीं करा पाएंगे। तो आपका जो एग्जामिनेशन और इवेल्युएशन है सर, वो आप ऑनलाइन कराएं तो हमारे लिए भी ये अच्छा होगा। हम आपके इस सिस्टम को में जो भी टेक्निकल चीजें होंगी उनको रीड करेंगे, उनको समझेंगे और हम भी इस तरफ बढ़ेंगे। और कोई किसी व्यूअर्स का कोई प्रश्न हो तो मैं बता सकता हूं, शर्मा साहब। हाँ जी सर, कोई अपने स्टूडेंट डॉक्टर अरविंद, हाँ सर, कुछ कोई पूछना चाहे अगर स्टूडेंट तो क्वेश्चन हो अपना तो आप रेज देख हैंड करो। लीजिए। सुरेश कुमार सारण सर बोलिए, क्या कहना चाह रहे हैं? सुरेश जी, सुरेश कुमार सारण जी को मैंने अनम्यूट कर दिया। सुरेश जी बोलिए, आपने रेज हैंड किया है। कोई भी अपने जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनमें से कोई भी पूछ सकता है, सभी आप अनम्यूट। सारण जी नहीं बोलना चाह रहे। विश्वजीत सिन्हा जी, सर हेलो सर, क्या आवाज आ रही है? हाँ जी। रोहिता सारस्वत जी, हेलो सर। हाँ जी। जी सर एमजीएसयू का एग्जाम होगा या फिर? एमजीए सर ये पूछना चाह रहे हैं एमजीएसयू एग्जाम होंगे क्या? सर का सर नेट कनेक्टिविटी चली गई खिचड़ साहब की। और एसकेआरयू के सर फिर? आवाज आ रही है मेरी? हाँ यस सर, आ सर। रही है। हाँ, यूजी में फाइनल ईयर का हो रहा है अभी 9 जुलाई से, और पीजी में प्रीवियस एंड फाइनल दोनों का हो रहा है। ओके सर। हमारे ऑफलाइन है एग्जाम, अभी ऑनलाइन नहीं है। ये अश्वनी कुमार सोनी जी हैं पीएयू लुधियाना से। बोलिए सर। अश्वनी कुमार सोनी जी। हेलो। हाँ जी सर। जी
हाँ जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ, हमारे यहाँ पे भी ऑनलाइन एग्जाम का सोच रहे हैं, लेकिन अगर घर बैठे हैं तो नकल को कैसे रोकेंगे अगर ऑनलाइन करेंगे? नहीं, ऑनलाइन में ये सिस्टम होता है सर, नकल रोकने का भी सिस्टम है। मैंने थोड़ी हमारी जो टेक्निकल फर्म है उससे जानकारी ली थी। तो एक तो जिसका रजिस्ट्रेशन होगा वही उसको सिस्टम को खोलेगा, और उसको एक्सटर्नल असिस्टेंस, आप बात कर रहे हैं कि कोई स्टूडेंट है उसके पास में बैठ के कोई उसको बता दे या लिखवा दे, ऐसा कुछ समझ रहे हैं आप क्या? एक जो डिवाइस अगर आप लॉक करेंगे तो सिर्फ उनकी डिवाइस लॉक होगी, अगर किसी स्टूडेंट के पास 2 डिवाइस हैं तो वो आराम से कॉपी कर सकता है। नहीं, इसका तो टेक्निकली इसका तो प्रबंध करना होगा, क्योंकि हम इस पे गए नहीं, इसलिए हमने बहुत ज्यादा इस पे एक्सरसाइज नहीं करी। लेकिन ये मुझे जानकारी है कि नकल पे रोक ऑनलाइन में भी की जा सकती है। डिवाइस को किसी को दूसरे को, या तो कोई ऐसा इसमें सिस्टम होता है कि उसके आसपास कोई दूसरा डिवाइस एक्टिव होता है तो वो कोई सिग्नल आ जाता है सिस्टम में, ऐसा कुछ है। चलिए, अभी ऐसा सिस्टम हो तो बताइएगा। जरूर जरूर, मैं अरविंद जी से या किसी से शेयर कर लूंगा, शर्मा साहब से। हमने प्रिलिमिनरी थोड़ी बात की थी तो उसमें ये था कि भाई नकल, क्योंकि ये तो पहला ही प्रश्न आता है परीक्षा से संबंधित लोगों के दिमाग में, तो ये हमने बात की थी तो उन्होंने बताया कि ऐसा इसको प्रिवेंट किया जा सकता है। और दूसरा, हमने बहुत 2-4 एग्जाम मैंने खुद भी लिए हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट का इंटरनेट कनेक्टिविटी खत्म हो गया है बीच में एग्जाम के, तो उसको क्या करेंगे? हाँ, ये दिक्कत रहती है कनेक्टिविटी की। आप क्या एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से हैं या एकेडमिक यूनिवर्सिटी से? मैं एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से हूँ, मैं चेयरमैन एकेडमिक्स हूँ PAU लुधियाना में, इंजीनियरिंग कॉलेज। जी सर, कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है, और इसलिए हमारा जो मेन वजह थी ऑनलाइन एग्जाम पे नहीं जाने की, उसका कारण यही था कि हमारे सेंटर्स बहुत रिमोट एरिया में हैं और वहाँ नेटवर्क की कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम रहती है। तो ये हरियाणा गवर्नमेंट ने जो है सुप्रीम कोर्ट में ऐसे कर दिया था कि स्टूडेंट्स गए थे सुप्रीम कोर्ट में, तो उन्होंने कह दिया कि एग्जाम आप तब ऑनलाइन लो अगर सब स्टूडेंट्स के पास इक्वल अपॉर्चुनिटी है टू अपीयर इन एग्जाम। जी, और अगर इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं है तो ना लीजिए। ये तो यूनिवर्सिटी नहीं, ये बिल्कुल वाजिब बात है, क्योंकि एग्जाम का जो पीरियड होता है 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे, उसमें किसी को अगर इस तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़े तो स्टूडेंट के लिए तो ये बड़ी नुकसान की बात है। तो ये सब चीजें तो डॉक्टर साहब व्यवस्था पहले से हमें इंश्योर करनी पड़ेगी ऑनलाइन पे जाएं तो। इसीलिए मैंने इसीलिए निवेदन किया था कि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज की जो कॉलेजेस हैं या सेंटर्स हैं वो मेरे ख्याल मैक्सिमम अच्छे टाउन में, अच्छे सिटी में होते हैं जहां ये समस्या कम आती है। अदरवाइज ये आती है तो इसका हमें पहले सॉल्यूशन अपने प्रोग्राम में, अपने माइंड में उसका सॉल्यूशन होना चाहिए, क्योंकि इवेल्युएशन है या एग्जामिनेशन है, उसमें किसी बच्चे के साथ इस तरह से नाइंसाफी तो नहीं होनी चाहिए। सर, राकेश गर्ग साहब और पूछना चाह रहे हैं, मैं उनको कर रहा हूँ सर अनम्यूट। हाँ जी राकेश सर बोलिए, राकेश गर्ग साहब। सर नमस्कार। नमस्कार सर। जो सर डॉक्टर सोनी ने क्वेश्चन पूछा और वो रिप्लाई किया, मैं उसी को थोड़ा सा एडिशन करना चाहूंगा सर। जैसे अभी बात चल रही थी कि वो एग्जाम कंडक्ट किए, जैसे ऑनलाइन की बात चल रही है, तो वो मैंने भी अभी ड्यूरिंग दिस सेमेस्टर आफ्टर द क्लासेस, जैसे फर्स्ट अवरली एग्जाम हमने कंडक्ट किए ऑनलाइन में, तो उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम वही बात कर रहे थे कि जो रिमोट एरिया में काफी स्टूडेंट्स हमारे जो एग्रीकल्चर के हैं वो रिमोट एरियाज में हैं। तो जी, कि जैसे कि जिस दिन एग्जाम लिया, चलिए मान लेते हैं कि कोई एक घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद कोई अपना पेपर सबमिट करवा रहा है। इवन कुछ स्टूडेंट्स तो ऐसे थे जिन्होंने 15-20 दिन के बाद भी ये हमें कहा कि भी हमारा तो ये नेटवर्क ही नहीं चल रहा था।
तो हाउ वी कैन इंश्योर इट कि भाई जो 10 या 15 दिन के बाद वो कह रहा है कि नेटवर्क नहीं चल रहा था, तो अब जी क्या मैं अपना अब टेस्ट सबमिट करवा सकता हूँ क्या? सो इट इज वेरी डिफिकल्ट इन द प्रेजेंट सिचुएशन कि हम ऑनलाइन इस सिचुएशन में करें कि कोई बच्चा अगर कितने वीक के बाद या 2 वीक्स के बाद ये कहे कि मैं कैन आई सबमिट द टेस्ट नाउ, सो हाउ वी कैन इंश्योर कि भाई सब यूनिफॉर्मिटी भी रहेगी और ट्रांसपेरेंसी भी रहेगी, वो चीज मैं थोड़ा सा कहना चाह रहा था इस। हेलो, जी 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 तो आवाज नहीं आ रही सर। आ रही है सर। मैं हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही। ओके, लगता है कीचड़ साहब, सर आवाज नहीं आ रही आपको हमारी? शायद डिस्कनेक्ट हो गए हैं। हाँ, कोई नहीं सर आप कंटिन्यू करिए सर, एनके शर्मा जी सर, प्लीज रिक्वेस्ट। Thank you, Dr. Arvind. Actually, that was the last lecture of Dr. Jaswant Singh Khichad from Maharaja Ganga Singh University of Bikaner. Friends, this is Dr. Arvind. सर आवाज आ रही है, बोलिए सर, आवाज आ रही है आपकी। ठीक है। Friends, now all lectures are over and this 2 days national webinar on strategy for strengthening agricultural education under changing scenario of COVID-19. It was organized under NHEP for these 2 days at SKRU Bikaner, and this seminar was inaugurated by our Honorable Chancellor and Governor of Rajasthan, Sri Kalraj Mishra ji, and he has guided us, blessed us, and given a roadmap also for value-based education, agricultural education. And this webinar was also addressed by Dr. R.C. Agrawal ji, Deputy Director General ICR, who is looking after the quality management of the whole agricultural system at national level. It was also addressed by Dr. P.S. Pandey Sahib. He is Assistant Director General Agricultural Education at ICR, and Dr. R.B. Sharma ji, who is looking after as National Coordinator under World Bank funded National Agricultural Higher Education Project at ICR. Dr. Alka Singh ji, she is Professor and Head Department of Agricultural Economics. Dr. Sudeep Marwa ji, he is Professor and Head Computer Application at ISRI, New Delhi. And this webinar was addressed by 6 Honorable Vice Chancellors, sitting Vice Chancellors, Professor Dr. R.P. Singh ji, our Honorable Vice Chancellor, SKRU Bikaner, Dr. N.S. Rathod Sahib, he is Honorable Vice Chancellor, Maharana Pratap University of Agriculture and Technology, Dr. S. Rajendra Prasad ji, he is Honorable Vice Chancellor, कंक्लूडिंग बोलना था उनको, University of Agricultural Sciences, Bangalore, Professor Vishnu Sharma Sahib, he is Honorable Vice Chancellor, Rajuvas, Professor Lalit K. Pamar Sahib, he is Honorable Vice Chancellor, Rajasthan IIT Skills University, Jaipur, Professor S.D. Charan Sahib, he is Honorable Vice Chancellor, Bikaner Technical University. And this seminar was also addressed by 2 former Vice Chancellors, Professor Alan Harsh Sahib, is ex-Vice Chancellor, or I would say he is a founder Vice Chancellor of Agriculture University, Jodhpur, and Professor H.P. Vyas Sahib, he is also a founder Vice Chancellor of Bikaner Technical University. And it was also addressed by Dr. P. Chandrasekhara Sahib, he is Director General, NIAM, Jaipur, and Dr. J.S. Khichad Sahib,
He is controller of examination, Maharaja Ganga Singh University. Actually, it is a very diversified group of eminent resource persons, and I would like to inform you that 2,588 participants have been registered to this webinar, and these 2,588 participants belongs to 31 states of the country. So this you can see the level of interest people have shown in this webinar, and in every session I have seen that in today morning the participation level was more than 857 or like that, and now around 500 people are also connected with the system. So I am grateful and thankful to all the eminent speakers, our Honorable Chancellor and Governor of Rajasthan for his kind blessing, and all eminent speakers and all the participants who have shown their interest. And actually it is a teamwork, and I would like to acknowledge the hard work of Dr. Dr. Arvind Jhaladia. He is working hard day and night, and our co-organizing secretaries, Dr. Amit Kumar, Dr. Vikram Yogi, Dr. BDS Nathawat, Engineer Vipin Ladha, and Sri H.S. Acharya ji. So I would like to acknowledge their help, cooperation, and contribution for successful conduction of this 2 days webinar. Now I would request to my colleague, Dr. Arvind, to please extend formal vote of thanks. Dr. Arvind, please. Dr. Arvind. धन्यवाद सर। इस 2 दिवसीय राष्ट्रीय वेबिनार में मैं एक बार सर इनको थोड़ा अनपिन कर देता हूँ। ओके। इस 2 दिवसीय वेबिनार राष्ट्रीय वेबिनार कृषि शिक्षा प्रणाली के सुदृढ़ीकरण हेतु कोविड-19 के बदलते परिदृश्य के तहत विषय पर दिनांक 26 और 27 जून को स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर की तरफ से आयोजित हुई। इस वेबिनार के उद्घाटन सत्र में कल 26 जून को हमारे बीच सम्माननीय राज्यपाल महोदय राजस्थान सरकार एवं कुलाधिपति महामहिम श्री कलराज जी मिश्र साहब भी हमसे जुड़े थे। इसके लिए मैं डॉक्टर अरविंद कुमार झाझड़िया पूरे स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय परिवार की तरफ से उनका आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने उपस्थित होकर हमारे विश्वविद्यालय का गौरव बढ़ाया। उन्होंने कल एक ई-मैगजीन कृषि मार्गदर्शिका 2020-21 और इंटीग्रेटेड फार्मिंग यूनिट्स का भी शुभारंभ किया। उनका बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद हमारे परम सम्माननीय कुलपति महोदय स्वामी केशवानंद राजस्थान एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बीकानेर प्रोफेसर आरपी सिंह जी साहब का, जिनके मार्गदर्शन, सहयोग और प्रेरणा से यह 2 दिवसीय वेबिनार की नींव हम रख पाए और सफलतापूर्वक समापन की ओर आज ले पा रहे हैं। इसी क्रम में मैं धन्यवाद देना चाहूंगा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के डिप्टी डायरेक्टर जनरल एग्रीकल्चर एजुकेशन और नेशनल कोऑर्डिनेटर नाहेब प्रोफेसर डॉक्टर आर.सी. अग्रवाल साहब का, कि उन्होंने भी अपने अमूल्य समय में से कुछ समय दिया और इतनी बड़ी पोस्ट पे होने के बावजूद भी उन्होंने हमारे यहाँ एलिमेंट स्पीकर के रूप में भी लोगों को मार्गदर्शन, मतलब स्टूडेंट्स और जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनको मार्गदर्शन दिया गया। इसी क्रम में प्रोफेसर एन.एस. राठौड़ साहब, कुलपति महोदय महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर, उनका भी मैं तहे दिल से SKRV परिवार की तरफ से उनका अभिवादन और धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने अपना कीमती समय में से हमें एलिमेंट स्पीकर के रूप में भी और आशीर्वाद के रूप में हमें समय दिया। इसी क्रम में मैं प्रोफेसर JS संधू साहब, कुलपति महोदय श्री करण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर, उनका भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। धन्यवाद प्रोफेसर BR चौधरी साहब का, कुलपति कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर, जिन्होंने अपना कीमती समय में हमसे जुड़े और हमारा सहयोग किया। इसी क्रम में प्रोफेसर डॉक्टर
DC जोशी साहब, कुलपति महोदय, कृषि विश्वविद्यालय कोटा, उनका भी मैं कृषि विश्वविद्यालय परिवार की तरफ से तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। इसी क्रम में हमारे एलिमेंट स्पीकर के रूप में भी और हमारा निरंतर मार्गदर्शन करते रहते हैं, और हमारे जो एक बीकानेर के अंदर ही पशु विश्वविद्यालय है, वेटरनरी यूनिवर्सिटी है, उसके कुलपति महोदय प्रोफेसर विष्णु शर्मा जी सर का भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने हमें एक एलिमेंट स्पीकर के रूप में भी एक अच्छे मार्गदर्शक के रूप में हमें सहयोग दिया और समय दिया। इसी क्रम में मैं बीकानेर टेक्निकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर SD चारण साहब, जिनको आज आपने सुना, उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने अपना मार्गदर्शन और सेवाएं हमें प्रदान की। इसी क्रम में मैं आज के विशिष्ट वक्ता प्रोफेसर डॉक्टर ललित के पवार साहब, कुलपति राजस्थान ILD स्किल यूनिवर्सिटी जयपुर महोदय का भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने एग्री टूरिज्म पे और हमें लगातार जब भी आवश्यकता होती है तो हमें वो सहयोग प्रदान करते हैं। इसके लिए सर मैं उनका कोटि कोटि आभार व्यक्त करता हूं। इसी क्रम में मैं हमारे एक बहुत ही ज्ञानी, जिनको कहेंगे या बहुत ही कम, मैंने सुना है बहुत ही कम उम्र के वाइस चांसलर हैं, प्रोफेसर S राजेंद्र प्रसाद जी, कुलपति महोदय US यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज बेंगलोर, जिन्होंने आज हमारे बीच में आकर एलिमेंट स्पीकर के रूप में भी और हमें मार्गदर्शन देने का उन्होंने समय निकाला, उसके लिए भी मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। इसी क्रम में मैं अपने चौधरी चरण सिंह नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग नियाम जयपुर के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर P चंद्रशेखरा साहब का भी तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने हमारे एक बार कॉल करने पर ही उन्होंने हमारा आमंत्रण स्वीकार किया और एक स्पेशल एलिमेंट स्पीकर के रूप में उन्होंने हमें मार्गदर्शन दिया। इसी क्रम में मैं बीकानेर टेक्निकल यूनिवर्सिटी के फॉर्मर वाइस चांसलर डॉक्टर SP व्यास साहब का भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने अपना स्पीकर के रूप में एक बहुमूल्य हमें मार्गदर्शन दिया। इसी क्रम में मैं डॉक्टर RB शर्मा जी, जो नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं नाहेप, जिसके बैनर के तहत हम नाहेप के अंतर ये ट्रेनिंग वेबिनार करवाया जा रहा है, उनके नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं डॉक्टर RB शर्मा जी, उनका भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने हमें मार्गदर्शन दिया, परमिशन दी, और उनका मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। इसी क्रम में मैं IARI इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली के प्रोफेसर एंड हेड डिवीजन ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स डॉक्टर अलका सिंह जी का भी तहे दिल से अभिवादन और धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने एलिमेंट स्पीकर के रूप में भी हमें मार्गदर्शन दिया और हमारा सहयोग समय समय पर सहयोग करते रहते हैं। इसी क्रम में मैं IASRI इंडियन एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट के कंप्यूटर एप्लीकेशन डिवीजन के हेड डॉक्टर सुदीप मरवाहा जी का भी मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने भी अपने कीमती समय में से कुछ समय निकालकर हमें एलिमेंट स्पीकर के रूप में भी सेवाएं दी और हमारा सभी का मार्गदर्शन भी करते रहते हो समय समय पर, उनके लिए भी उनको तहे दिल से धन्यवाद। इसी क्रम में मैं डॉक्टर जसवंत सिंह खिंचड़ साहब, जो कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन है महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी बीकानेर, उनका भी तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने अपने अमूल्य समय में से हमें समय दिया। इनके साथ ही मैं हमारे इस नेशनल वेबिनार के आवाज आ रही नहीं? आ रही है, सुन पा रहे हैं सब? ठीक है, ठीक। इसी क्रम में मैं हमारे जो इस राष्ट्रीय सेमिनार है, इसके जो कन्वीनर साहब हैं डॉक्टर NK शर्मा जी हैं, जिनका मार्गदर्शन से और जिनके गाइडेंस से ये राष्ट्रीय वेबिनार सक्सेस हुआ है, सफल हुआ है, और वो अपने साथ में ही यहाँ PI नाहेप, प्रिंसिपल यूनिवर्सिटी के नाहेप और नोडल ऑफिसर ICR एंड एडिशनल डायरेक्टर रिसर्च सीड्स, उनका भी मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने ये एक इस कोविड-19 के समय में एक बहुत
सख्त जरूरत थी एक एजुकेशन के रूप में कि ऐसा एक वेबिनार करवाने की, जिससे कि सभी पार्टिसिपेंट, सभी एकेडमिशियन और सभी स्टूडेंट्स जुड़ सकें। तो मैं उनका भी सर तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने ऐसी सोच पे, इस सोच पे और ये एक ऐसा वेबिनार करवाया है। उनके लिए मैं सर तहे दिल से उनका आभार व्यक्त करता हूं और धन्यवाद देता हूं। इसी क्रम में मैं इस राष्ट्रीय वेबिनार के को कन्वीनर हैं डॉक्टर IP सिंह जी साहब, जो अधिष्ठाता है कृषि महाविद्यालय और कृषि संकाय के चेयरमैन भी हैं। उनका भी मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि उनका सहयोग और उनका मार्गदर्शन हमें समय समय पर इस सेमिनार में मिलता रहा। इसी क्रम में मैं डॉक्टर मधु शर्मा मैडम का, जो निदेशक है इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर बिजनेस मैनेजमेंट IABM SKRA बीकानेर, उनका भी मैं तहे दिल से धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं। इसी क्रम में डॉक्टर विमला डुकवाल मैडम, जो अधिष्ठाता है कॉलेज ऑफ होम साइंस गृह विज्ञान महाविद्यालय स्वामी केशव राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर, उनका भी मैं तहे दिल से इस राष्ट्रीय सेमिनार के सभी ऑर्गेनाइजिंग सदस्यों की तरफ से उनका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। इसी क्रम में डॉक्टर AK शर्मा जी, जो हमारे एक्स कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन एंड प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ PBG यूनिवर्सिटी हेड स्वामी केशव राजस्थान एग्रीकल्चर बीकानेर, उनका भी तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने समय समय पर हमें मार्गदर्शन दिया और उनके कारण ये प्रोग्राम सफल हुआ। इसी क्रम में डॉक्टर योगेश शर्मा जी, जो अभी वर्तमान में हमारे परीक्षा नियंत्रक हैं और प्रोफेसर हैं सॉइल साइंस डिपार्टमेंट SKRA बीकानेर, उनका भी मैं तहे दिल से अभिवादन करता हूं। इसके अलावा जो इस राष्ट्रीय वेबिनार में जो हमारे साथ लगातार 10 दिन से कार्य कर रहे हैं, ये तो वेबिनार तो चलो मान लो कि 2 दिन की, लेकिन ये 10 दिन से जो लगातार जुड़े हुए हैं, जिनका एक हार्ड वर्किंग में इन शब्दों में बयान नहीं कर सकता, प्रयोग में नहीं कर सकता, मतलब बोल नहीं सकता शब्दों में, वो भी हैं डॉक्टर अमित कुमावत जी हैं, जो इसके को ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी में असिस्टेंट प्रोफेसर है एग्रोनॉमी में स्वामी केशव, उनका आभार व्यक्त करता हूँ। डॉक्टर विक्रम योगी जी हैं, सहायक प्राध्यापक डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स कृषि महाविद्यालय बीकानेर, इनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। डॉक्टर BDS नाथावत जी, सहायक प्राध्यापक कृषि अनुसंधान केंद्र SKRA बीकानेर, उनका भी मैं तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। इंजीनियर विपिन लड्ढा जी, जो शिमका के इंचार्ज हैं और जिनकी हमने यहाँ सेवाएं ली हैं और जिनके कारण ही ये प्रोग्राम संभव हो पाया है, सारी कनेक्टिविटी और सारा सिस्टम जो हमने उनका यूज किया है, उनके लिए भी उनको बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। एक वो महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में हमारे बीच में जो हमारे यहाँ पब्लिक रिलेशन ऑफिसर हैं, PRO साहब हैं, श्री हरिशंकर आचार्य जी, उनका भी मैं तहे दिल से अभिवादन और तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा कि उनके प्रयासों के कारण अखबार में, प्रिंट मीडिया में और आज जो फेसबुक लाइव आप देख रहे हो, वो भी उन्हीं के प्रयासों के कारण संभव हो पाया है। उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। इसके अलावा मैं इसका थोड़ा सा बता दूं कि हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन 2600 से ज्यादा हुए और सारे स्टेट हुए हैं, तो सभी स्टेट्स के लोग और सभी में प्रतिभागियों का भी, जो इन्होंने अपना 2 दिन तक हमारा ये प्रोग्राम देखा है, सुना है और इसमें भाग लिया है, उनका भी मैं सभी अटेंडीज, सभी पार्टिसिपेंट्स का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने अपना मतलब इतना अमूल्य समय देकर हमारे साथ लगातार 2 दिन तक, कल भी पूरे 2 बजे तक, आज भी मतलब 10 से 2 बजे तक वो बिल्कुल हमारे लाइव हम अभी भी देख रहे हैं, 700, 800, 900 जूम पे लाइव हो रहे हैं। उसके अलावा हमारे फेसबुक पे भी वो जो देख रहे हैं, उन सभी का तहे दिल से इस ऑर्गेनाइजिंग जो कमेटी है, उन सभी सदस्यों की तरफ से और स्वामी केशव राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर की तरफ से उनका बहुत बहुत हार्दिक आभार और धन्यवाद देना चाहूंगा। धन्यवाद सर। हाँ अरविंद, 3 नाम छूट गए, जरा उनके भी बोलिए। ये जो बच्चे हैं हमारे, अभिनव, आदित्य और रमनदीप, ओके, इन लोगों ने बहुत मेहनत की है। थैंक यू सर, सॉरी। आदित्य, अभिनव और रमनदीप जी का तो मैं वास्तव में इनका बहुत ही मतलब इस बात के लिए सॉरी मांगता हूँ कि उन्होंने हमारी टेक्निकल और जो सारा जो भी सिस्टम इन्होंने संभाला है और इन्होंने कार्य किया है, जो भी कोई प्रॉब्लम या कोई समस्या आई है उसका समय पर तुरंत इन्होंने निपटारा किया है, तुरंत निदान किया है। उनका भी मैं तहे दिल से, पूरी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की तरफ से उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच। Thank you and bye bye to everyone.